Hello students, welcome to English grammar class. Today we shall deal with optative sentences. Our lesson is change of narration. Changing direct speech into indirect speech. Optative sentences. First of all, what are optative sentences, or what is an optative sentence? A sentence that expresses wish, prayer, curse, blessing, etc. is called an optative sentence. Examples of optative sentences are given below. Number 1, may Allah help you. Number 2, may you live long. Number 3, happy birthday. Number 4, thank you. At the end of each optative sentence, there is given mark of exclamation. I have already posted different kinds of sentences or kinds of sentences, optative sentence, exclamatory sentence, interrogative sentence on YouTube. Any student who has missed to watch the different types of sentences is asked to go to YouTube, type Master Irshad Khan, and there you will get lots of videos on English grammar, and from there you can choose kinds of sentences. If you see that video, you will be able to identify the different kinds of sentences, and that will be very much helpful to learn the change of narration. Let's move to the day's lesson. First of all, rules for changing narration of optative sentences into indirect speech. First rule is an optative sentence is changed to an assertive sentence. Optative sentence को सबसे पहले हम क्या करेंगे? Assertive sentence में change कर देंगे. Number 2, reporting verbs such as wished, prayed, blessed are used. जो डायरेक्ट स्पीच में जो said to me, said to him या said to her, ये जो रहता है, ये said to रहता है, उस रिपोर्टिंग वर्ब को, that reporting verb is to be replaced by such verbs as wished, prayed, blessed, etc. according to the meaning of the sentence. Now let's go to learn how to change an optative sentence into indirect speech. Here are exercises worked out. You just watch. I'm going to tell you how these changes are made. Number 1, my mother said to me, may your dreams come true. May your dreams come true. This is an optative sentence and this is to be changed. My mother said to is replaced by wished. My mother wished me that. अब यहाँ पर देखिए दैट के बाद जो होता है, दैट के बाद ये एक क्लॉज है, दैट के बाद एक सेंटेंस बनता है यहाँ पर. तो सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट के बाद योर ड्रीम्स, योर मैंने माई मदर सेड टू मी, ये योर किसके लिए आया है? मी के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा योर ड्रीम्स का क्या हो जाएगा? माई ड्रीम्स. अब मे को चेंज कर देंगे माइट में, तो हो गया माई मदर विश्ड मी दैट माई ड्रीम्स माइट कम ट्रू. Number 2, angel. May the happy prince live in my city of gold forever.
अब यहाँ पर देखिए एंजल, whom did angel say, that is not mentioned here. एंजल किससे कहा है कोई पता नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ विश्ड कर देंगे कि एंजल विश्ड, ठीक है, दैट। अब यहाँ मे द हैप्पी प्रिंस है तो हो जाएगा द हैप्पी प्रिंस माइट, मे का माइट कर देंगे, लिव इन। अब माई सिटी किसके लिए आया है, एंजल के लिए आया है, तो इसलिए माई हो जाएगा, माई का हो जाएगा इन हिज सिटी ऑफ गोल्ड फॉर एवर। तो एंजल विश दैट द हैप्पी प्रिंस माइट लिव इन हिज सिटी ऑफ गोल्ड फॉर एवर। हमेशा याद रखिएगा दैट के बाद ये एक क्लॉज शुरू होता है, मतलब दैट के बाद एक सेंटेंस शुरू होता है, और चूँकि सेंटेंस शुरू होता है, सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विथ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसलिए इस पूरे सेंटेंस में हैप्पी प्रिंस सब्जेक्ट है, लिव वर्ब है। नंबर 3 स्वॉलो, गुड बाय माई प्रिंस। अब स्वॉलो जो है किस, स्वॉलो का ऑब्जेक्ट कौन है, ये स्वॉलो किससे बोल रहा है, माई प्रिंस से। अब यहाँ पर गुड बाय दिया हुआ है, देखिए गुड बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इन अल्फाज के लिए जो है अंग्रेजी में BID बिड का इस्तेमाल होता है, माने बिड गुड बाय, बिड गुड मॉर्निंग, बिड फेयरवेल। अब बिड का पास्ट टेंस होता है बेड, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे स्वॉलो बेड हिज प्रिंस गुड बाय, स्वॉलो बेड माई प्रिंस का हो जाएगा हिज प्रिंस गुड बाय। नंबर 4 थैंक यू, यू आर द हीरो ही सेड। अब इसमें देखिए 2 पार्ट है, एक है थैंक यू है और दूसरा है यू आर द हीरो। 2 पार्ट को कैसे बनाएंगे, देखिए ही, अच्छा अब यहाँ पर चूंकि यू है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि ही सेड टू मी, इसको सपोज कर लीजिए ही सेड टू मी। जब मी को सपोज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ही थैंक्ड मी, ये थैंक यू है, इसका हो गया पास्ट टेंस, ही थैंक्ड मी, इतना दूर का बन गया नरेशन। अब इसका बनाना है एंड सेड, अब इसके लिए हम लिखेंगे एंड सेड दैट। अब यू किसके लिए आया है, मी के लिए आया है, तो मी का हो जाएगा यहाँ मी, यू रहेगा तो मी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई। अब पास्ट टेंस में हो गया आई वॉज द हीरो, आर का हो गया वॉज, तो ही थैंक्ड मी एंड सेड दैट आई वॉज द हीरो। नंबर 5 गुड लक गवर्नर, समवन कॉल्ड आउट, आप करेंगे समवन विश्ड द गवर्नर। अब समवन कॉल्ड आउट, यहाँ पर किस कॉल्ड आउट का माने ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, गवर्नर, तो करेंगे समवन विश्ड गवर्नर, क्या विश किया, गुड लक, समवन विश्ड द गवर्नर गुड लक। नंबर 6 he said may his soul rest in peace, he wished that his soul might rest in peace, he said may his soul, ठीक है, यहाँ पर his soul थर्ड पर्सन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर his soul का his soul ही रहेगा, he wished that his soul might rest in peace। नंबर 7 देखिए द मंक सेड टू द वुमन मे यू हैव अ चाइल्ड। अब देखिए मंक जो है, माने मंक जानते हैं जो कि माने ये ईसाइयों में जो होता है, जो अनमैरिड होते हैं, लोग शादी नहीं करते हैं, और ये प्रीचर भी होते हैं, दे प्रीच ही प्रीचेस द बाइबल एंड ही डज नॉट मैरी एंड ही लिव अ वेरी सिंपल लाइफ, he is a religious person। The monk said to the woman may you have a child। अब यहाँ पर मंक वीमन को क्या बोल रहा है, एक तरह से ब्लेस कर रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए उस हिसाब से यहाँ पर said to का जगह हम लोग लिखेंगे blessed। The monk blessed the woman, said to रिपोर्टिंग वर्ब हट गया and this reporting verb is replaced by blessed, तो हो गया the monk blessed the woman, फिर लिखेंगे that यू वुमन के लिए आया है, इसलिए हो जाएगा शी, दैट शी मेक अ माई, शी माइट हैव ए चाइल्ड। नंबर 8 द बेगर सेड मे गॉड गिव यू मच वेल्थ। अब यहाँ चूंकि यहाँ पर गॉड है तो इसलिए यहाँ पर सेड है, इसलिए इसके लिए पीरियड का वर्ड, पीरियड वर्ब इस्तेमाल करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हो गया द बेगर पीरियड दैट गॉड मेक अ माइट गिव मी मच वेल्थ। अभी चूंकि यहाँ पर यू है तो हम यहाँ सपोज कर लें कि द बेगर जो है, द बेगर सेड टू मी,
ये सब सपोज करने के ऊपर हुआ। अगर यहाँ पर आप लिखते कि द बेगर सेड, अगर यहाँ पर आप इस तरह सपोज करें, द बेगर सेड टू हिम मे गॉड गिव यू मच वेल्थ, तो क्या हो जाएगा? द बेगर प्रेड दैट गॉड माइट गिव हिम मच वेल्थ। ठीक है। नंबर 9, ओ हेलो सूजन सेड एलिस। अब यहाँ पर इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ के लिए क्या लिखेंगे? सेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको रिप्लेस कर दे ग्रीटेड। एलिस ग्रीटेड सूजन। फर्स्ट टाइम व्हेन टू पीपल मीट ईच अदर, ईच ऑफ देम ग्रीट्स। ठीक है। नंबर 10 देखिए, ओ हाय एलिस हाउ आर यू सेड सूजन। अब वहाँ पर कन्वर्सेशन था, यहाँ पर देखिए एलिस सूजन को ग्रीट की, तो सूजन जो है ग्रीट बैक कर रही है एलिस को। तो अब यहाँ पर लिखेंगे सूजन ग्रीटेड एलिस बैक, माने वो उसको वापस वो उसको ग्रीट की। शी ग्रीटेड सूजन ग्रीटेड एलिस, सॉरी एलिस ग्रीटेड सूजन ग्रीटेड एलिस बैक। तो यहाँ का तो हो गया सूजन ग्रीटेड एलिस बैक। अब यहाँ पर दिया हाउ आर यू, तो हो जाएगा एंड आस्क्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए एंड आस्क्ड। हाउ यू किसके लिए आया है? एलिस के लिए आया है, तो हाउ शी वॉज। नंबर 11 देखिए, आई सेड टू हिम हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहाँ पर क्या हो गया? आई विश्ड हिम हैप्पी बर्थडे। आई सेड टू हिम, यहाँ पर यू है, यू किसके लिए आया? हिम के लिए आया है, इसलिए हो जाएगा आई विश्ड हिम हैप्पी बर्थडे। नंबर 12 देखिए, शी सेड टू हर बॉस गुड मॉर्निंग सर। A few minutes ago I had told you that bid is used to say goodbye, good morning, etc. तो यहाँ पर said to रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पर उसके लिए हम क्या रिपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे? bade. She bade her boss good morning. ठीक है। नंबर 13 देखिए, ऑन अचीविंग द फर्स्ट डिवीजन माई फ्रेंड सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक उसी तरह से लिखेंगे कि ऑन अचीविंग द फर्स्ट डिवीजन, यहाँ तक ठीक है, माई फ्रेंड। अब यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस है, इसके लिए हम एप्रोप्रिएट जो वर्ब होता है वो होता है कॉन्ग्रेचुलेट। तो कॉन्ग्रेचुलेट एप्रोप्रिएट वर्ब है, ये एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग वर्ब होगा, इसलिए इसका पास्ट टेंस में हो जाएगा माई फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। उसके बाद देखिए नंबर 14, माई पेरेंट्स सेड टू मी हैव अ सेफ जर्नी। यहाँ पर भी विश है, माई पेरेंट्स विश्ड मी अ सेफ जर्नी। तो ये था आज का लेसन ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में कि किस तरह से अगर डायरेक्ट स्पीच में ऑपरेटिव सेंटेंस दिया हो तो उसको ऑपरेटिव सेंटेंस माने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद करते हैं आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।